सिद्धरमैया जी, रेवंत रेड्डी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभिषेक मनु सिंघवी ji, senior leaders on the dais, my lawyer friends, I'd like to welcome all of you here today. नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। So, you know, I was thinking what to say to you, the legal fraternity, and something came to mind. You know, as a politician, largest chunk of our job is meeting other politicians. And when you meet a politician, as many of you must have done, he will spend a lot of time talking about peripheral issues, half an hour, 45 minutes, and then eventually, right before he's ready to leave, he'll come to the point. You know, so it's quite frustrating for me. This is the difference between me and my sister. She has much more patience on this front, so she'll listen, you know, for half an hour, 45 minutes. And I'm thinking, okay, listen, you've come here to tell me something. You know, cut out the suspense. Tell me why you've come. And this sometimes comes as a shock to us politicians. Because also there's another thing going on. They also need the world to know that the meeting was 1 hour long or 2 hours long. Now, you're exactly the opposite. So, your time is expensive, unlike ours. So you come in and you instantly say what you have to say. And then on the other end of the spectrum is Dr. Singhvi, who is, you know, I've also dealt with a lot of lawyers, but he is like a laser beam. He will get to the point instantly, and he will cut exactly to what the issue is. And I've got, I don't know, I've lost count, but I think somewhere around 30, 32 cases. And so I discuss, you know, these cases with him. And it's very refreshing because it's literally, Dr. Singhvi, what do you think? And in 30 seconds, he's told me everything I need to understand has been delivered to me in 30 seconds. Now, it's important that you know who you are. You know, in our tradition, in the Eastern tradition, religious tradition, spiritual tradition, what is important is that you understand who you are. In the Western tradition, it's important that you understand everything around you. But in our tradition, it's important that you understand the self and you understand yourself and your own structure. So it's important that you know who you are. First of all, the Congress Party, you're the people who started the Congress Party. So the Congress Party was essentially lawyers, right? And Singhvi ji, no, and you need to be reminded of this because, and I'm not just talking to you, I'm talking to every lawyer in this country.
we would not have got freedom. We would not have got freedom if the lawyers of this country had not fought for freedom. All this talk about constitution, this would not be here if it had not been for lawyers. You mentioned, Singhvi ji mentioned Gandhi ji, Nehru ji, Patel ji, Ambedkar. Those were the top 5 or 6 people. But if you actually look at the Congress party in those days, there were other people, thousands and thousands of other lawyers who were operating at a lower level. So the freedom movement was actually fought in large measure legally. Right? So you are the people who are the backbone of the Congress party. And you are also the people who envisioned this constitution. If you had asked people who did not understand the law to frame this, it would be impossible. Right? So it was lawyers, it was the legal mind, it was the legal fraternity that built this entire architecture. And why am I telling you this? Because it is the architecture that you built that is being destroyed today. And it is being systematically unraveled on every front. Some visible in front of our face, and others hidden. You know, I've been speaking recently about the election system. And I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. And it went on for some time. There was a conversation, but I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra, where in the Vidhan Sabha we won the election, hands down. In the Lok Sabha we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. We found it in Maharashtra. Clearly, 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. But still, we didn't have clear proof. So when I would even mention it to our allies, that look, there is clear cheating that has happened, my allies would say to me, yes, we can see that there is cheating that has happened, but we don't have proof. And now, I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof
that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist, that it has disappeared. It has taken us 6 months, 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions, and you'll be shocked to know, as I was, that when they give booth-wise paper versions of the voting list, that document cannot be scanned, it cannot be copied. Meaning you put it into a scanner, nothing comes out. Why would the Election Commission scan protect, copy protect the voter list? Now, you'll be shocked at the amount of detail we've gone into. And you will see, with no doubt, zero doubt, how the election, how a Lok Sabha election is stolen. Six and a half lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. We did not have proof, so we could not make these type of statements earlier. But I'm making this statement confidently because I have 100% proof now. And whoever I have shown it to has fallen off the chair. Literally, they said, how can this be possible? Well, it is possible. It is happening. Right? Who is going to fight this battle? Only you people can fight this battle. Frankly, we non-legal people don't even know how to fight this battle. We can fight the political battle. We can fight the battle on the streets. We can fight in the villages. We can fight in the city. We can't fight in the courts. We don't know how to. And so, you are the people who have to defend the Constitution in the courts.
You know, I had a document. We had a document. We had a document some years back on the Rafale deal. Randeep is looking at me. Document that said clearly, black and white, that the Prime Minister office and the NSA have interfered in the Rafale deal and damaged the Rafale deal. This document itself would have brought down any government in any country of the world. Nothing happened. Nothing happened. You know where the document went? You know where the document died. Nothing happened. I'm fighting 30 cases. Anyone who fights the regime, any political person, anybody who works in the NGOs, civil society knows that the moment you oppose, you will be attacked. You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? And wherever you look, the problem exists. I mean, I've said it clear as day here, that we have 100% proof. Watch the newspapers and the media tomorrow. They'll be talking about Bollywood, about how, you know, about how there was a fantastic dance, amazing solar eclipses taking place, something they'll come up with. And so this is a full-scale attack. And it's not just an attack on the Constitution. Because this book is a manifestation of India's identity. It's a manifestation of our history, of our culture, of our tradition, of our religion. This is not written in 1947, in 1950. This is 3,000, 4,000, 5,000 years old. Buddha speaks through this book. Narayana Guru, Basavana, Ambedkar, Periyar, everybody who's been anybody in this country. Right? Anybody who's been, you look, anybody, and in every state there are there. In Assam, Gaurav will tell you. Right? In Tamil Nadu, in Karnataka, in Uttar Pradesh, Kabir, there's a list. So this is not something that we dreamt up in 1947 or 1950. This is something, this is our blood. And how dare you attack our blood? Right? So we are not just, we must remember, we are not just defending
this red book, this legal document. We are defending our way of life. Right? Tell me which Indian tradition, which Hindu tradition says that you should beat up a Muslim child? Where is it written that you should lynch someone? Which tradition of ours says it? There's not a single tradition of ours that says it. Our tradition says everybody is the same. So these people, they're not attacking our politics. They're attacking us. They're attacking our history. They're attacking our religion. For anybody who understands Hinduism, anybody who has gone into depth in Hinduism, they're attacking Hinduism. And frankly, yesterday my sister said to me, now, personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा. She said to me, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. You please understand that's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open-hearted speech and she'll tell you exactly the extent to which the ruling ideology is based in cowardice. So this is the difference between us. You see, when the British came, you stood up and said, we will defend our tradition, our culture, and our way of life. And the RSS said, sir, please tell us what we should do. Sir, please tell us how we can help you. And this is the truth. If it was not the truth, I wouldn't say it. It is the truth. People don't like it, but it is the truth. Gandhiji spent most of his adult life in jail. Nehruji spent most of his adult life in jail. Sardar Patel spent most of his adult life in jail. Why? Because they opposed the British. Show me the RSS leader who did it. So they fear the Congress. The true Congress. You see, they fear the true Congress. And every single one of you have the true Congress inside you. What is the Congress? I'll tell you what the Congress is. What is the Congress? The Congress is, a famous American general, General Patton, who fought in World War II, was asked, what is the difference between a hero and a coward?
What do you think his answer was? He says 5 minutes. He says the hero waits 5 minutes and the coward runs away. Right? So the Congress is just simply bravery. It's just bravery. When somebody comes in front of you, says something to you that you don't agree with, and you have the courage to stand up and say, sorry, I don't agree with it. I will not accept it. That's the Congress. Up now, there's another element. You can be courageous and be wrong. Doesn't mean anything. We are going to be courageous, but we're always going to be defending the truth, not defending some lie. And then the final thing, most beautiful thing, we're going to do it non-violently. So we will not, no matter what you do, you cut our arms off, we will not act violently towards you. So these three things, the ability to tell the truth, courage, and then not letting your anger overtake you and go into the zone of violence. This is the Congress. And if you want to define the BJP, just do the opposite. No, बड़ी अच्छी तरह fit होता है. If you don't have the courage, you deal in untruth, and you're violent. There you are. That's the difference. So I'd like to finish by saying, you're an inspiration to us. I mean, I know when I am navigating, when I am in the कहीं भी डाल दो मैं नेविगेट कर जाऊंगा, बट कोर्ट में मैं नहीं जानता क्या करना है. मुझे कहते हैं, चीमा जी बैठे, मुझे कहते हैं भैया ये बोल मत देना. अभी भी देखो, देख रहे हैं, इज लुकिंग इन माय डायरेक्शन एंड से ये कुछ मतलब उल्टा सीधा. राइट? So I don't understand how to navigate that, and you help us navigate that. Singhvi ji helps us navigate that. Chidambaram ji, Kapil Sibal ji is not here, but he also helps us navigate that. You know, so thank you very much. And finally, Singhvi ji, I had an idea while I was sitting there, which was that, you know, every hospital has a blood bank. When you need blood, there's a blood bank. And these days, because of the nature of the RSS and BJP, legal time has become like blood, right? Many people need this. For the Congress people, it's easy. You know, Sukhuji, Singhvi ji, all the top people are there. I need legal services. I can pick up the phone and call Singhvi ji, Chima ji, Chidambaram ji, possibly even Kapil Sibal ji. Right? And of course, Tankha ji. But everybody can't do this. You know, some Congress worker somewhere, he can't do this. Or if you're not Congress, somebody who's being attacked, civil service person being attacked, can't do this. So my suggestion to you is, get your thousands of lawyers to say, listen, we commit X amount of time to defend the Indian Constitution, and anybody who wants access to that time can come. ये मैं जानता हूँ आप करते हो,
पर इसको आप सिस्टमैटिकली कीजिए। ये आप इनफॉर्मली करते हो, बहुत अच्छी तरह करते हो, बट इसको आप फॉर्मली कीजिए, दैट एवरीबडी नोज दैट इफ आई नीड लीगल टाइम, आई एम बीइंग अटैक्ड, मे बी आई एम इन मणिपुर, मे बी आई एम in Chhattisgarh, I need legal time. There is the Congress legal department that I can turn to, and they will give me this 20th, 21st century blood legal time. It's an honor for me to come here. It's a pleasure for me to come here. Thank you, Singhvi ji, for giving me this opportunity to talk to so many lawyers at the same time. Thank you very much. All the best. Thank you very much, Rahul ji, for that very inspiring address and for being the crusader of people's rights. आपने इस देश को मोहब्बत सिखाई और आपने जब 2024 के पहले संविधान हाथ में उठा लिया तो ना सिर्फ सरकार को ललकारा बल्कि इस देश में न्याय की उम्मीद जगा दी और लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, and the way you are fighting it brings hope, and we hope that India's republic and our democracy will remain secure. Thank you very, very much for that. There are very few people who walk with the courage of their convictions like you do. Ladies and gentlemen, one of the most towering figures in Indian politics, he embodies resilience, compassion, and an unwavering commitment to social justice. He truly stands for what rising through the rank really means. In his remarkable journey from a bloc president to the elected president of the Indian National Congress, he has overcome profound personal tragedies and societal challenges. In fact, he started his political career as a lawyer for the trade unions. As the party's president since 2022 and leader of the opposition in Rajya Sabha, Shri Kharge ji has demonstrated exceptional political acumen, steering the party with wisdom in a complex political landscape. His commitment to social justice reflects through the setting up of the Siddharth Vihar Trust and the Buddh Vihar in Gulbarga. संविधान में उनकी आस्था और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सब के लिए एक आदर्श है। सदन के अंदर और सदन के बाहर उनकी वाक्पटुता, उनके तार्किक वक्तव्य और उनकी निर्भीकता के सभी कायल हैं। Without wasting any more time, may I now request the Honorable Congress President, Shri Mallikarjun Kharge ji, to deliver the Chief Guest's address. Pathways and Perspective, 2 August 2025, इसका जो सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और जिसकी तैयारी बड़ी जोर से आप लोगों ने किया है, इसीलिए पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अभी आपने राहुल गांधी जी की तकरीर सुनी और बड़े आज जरा जोश में बहुत थे वो कि पूरा लॉयर्स को देखते ही बहुत जोश आ गया, क्योंकि नहीं तो जोश ज्यादा आया इसलिए कि मेरे संविधान को बचाने वाले लोग यहाँ पर पूरे भर गए हैं। इसीलिए हमारे युवा नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी इस सभा में उपस्थित
हमारे पार्टी के बहुत से चीफ मिनिस्टर्स, सिद्धरामैया जी, रेवंत रेड्डी जी, सुखवीर सुक्कू जी और फॉर्मर सीएम्स और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, और आज राहुल गांधी जी ने बार बार नाम लिया क्योंकि उनको थोड़ा समाधान करने के लिए हमेशा प्रियंका गांधी जी की आवश्यकता थी, इसलिए प्रियंका गांधी जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी और मोहम्मद खान, आप सभी ने इस सभा में शामिल हुए हैं। इसीलिए मुझे तो बड़ा आनंद हुआ कि इतने देश के सारे लॉयर्स और खास करके हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी को संबंध रखने वाले लोग जब यहाँ पर आए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लीगल सेल का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस और पाथवेज एंड प्रोस्पेक्टिव्स हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, जैसा कि इसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया और सिंघवी जी ने भी किया, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये प्रत्येक भारतीय को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार देता है। लेकिन आज यही संविधान बड़े खतरे में है। सत्ता में बैठे नेता बदलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का इरादा है कि संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटा दी जाए। इतना ही नहीं, अगर उनको लास्ट इलेक्शन में, इन्हें 2024 के चुनाव में 400 सीट मिलते तो वो निश्चित रूप से संविधान ही बदल देते थे। लेकिन ये आपकी ताकत है, इस देश की जनता की ताकत है, और करोड़ों जो मतदार है, वोटर्स है, उन्होंने दिशा बदल दी। और मैं ये कहूँगा कि जो 400 पार कहते थे, उनके मुंह पे तमाचा मारा। यही हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसका क्रेडिट राहुल गांधी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ा ही नहीं। संविधान बचाओ की जो मुहिम उन्होंने चलाई, और वो संविधान का किताब हर जगह उन्होंने जो लोगों के सामने पेश किया, उससे आज 400 सीट उनको मिल नहीं पाए। संविधान जो खतरे में था, उसको अगर किसी ने बचाया तो हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने बचाया। हम सब लोग साथ में काम करते हैं, और जब एकता के साथ काम करते हैं, यूनिटी के साथ काम करते हैं, ऐसा ही हम कुछ साधते हैं। मैंने पहले कहा कि संविधान में से, प्रियम्बल में से सेक्युलर
सोशलिस्ट शब्द को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही लोग जिन्होंने अपने पार्टी के संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द रखा है, आप बीजेपी आरएसएस के चाल को समझते हैं। अगर आप बीजेपी की जो उनका पार्टी का संविधान है या उनके पार्टी का जो ये है अपना क्या कहते हैं, उनके पार्टी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल संविधान में है वही शब्द पूरे उनके कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब वो बाहर कहते हैं कि हम सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को निकालेंगे। भाई आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत आपके पास नहीं है जो ताकत हिंदुस्तान के वोटरों के पास है। तो दोस्तों, ये जो उनका दोहरा चेहरा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लाके लोगों को गुमराह करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेवारी तो न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की होती है, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन जब एक न्यायाधीश धर्म विशेष के लोगों के लिए अपशब्द से संबोधन करे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और जब सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दे या मीडिया पूंजीपतियों के माध्यम से नियंत्रित करे, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है। जो न्यायाधीश पार्टी को टीका करता है, धर्म को टीका करता है और एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बात करता है, वो न्यायाधीश नहीं है, वो तो देश के लिए, संविधान के लिए खतरा आरएसएस का न्यायाधीश है। मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को और दलितों के साथ भेदभाव आम होता करते हैं, चिकन की बात करते हैं, मुगल की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, और समाज को बांटने की बात अगर कोई करता है, इस देश का प्रधानमंत्री हमेशा करता है। अरे उसको संविधान बचाने के लिए लोगों ने चुन के यहां पर लाया, और संविधान को जो संविधान अनुष्ठान में लाने के लिए उनको लोगों ने चुना। लेकिन संविधान को अगर कोई कुचल रहा है, ये प्रधानमंत्री कुचल रहे हैं, ये बीजेपी कुचल रही है। इसीलिए आपकी जरूरत बहुत है, क्योंकि जैसा अब हर जगह वोटिंग का रिवाइवल करने का चल रहा है, और खास करके इसका मुहिम भी राहुल गांधी जी ने उठाया कि जो अभी उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से आपको समझाया, जैसा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी का जो चुनाव हुआ, जिसके वोटर्स कैसे बदले गए। 10 बाय 10 के घर में रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है
और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9,000 वोटर्स होते हैं तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है। आप देखिए सर, स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव के नाम पर लाखों गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। बिहार में करीब, आज के पेपर में आप देख सकते हैं, गया है। आगे यही पूरे देश में उन्होंने खुद ये लिस्ट पब्लिश की है। 7 करोड़ वोटर में अगर 65 लाख या 1 करोड़ के करीब वोट घटते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये सोच समझ के उनकी चाल है। गरीब लोगों को वंचित करना, अल्पसंख्यकों को वंचित करना, और जो थके हुए लोग हैं या जो बहुत ही अपने हकूक का, ऐसे लोगों को काट छाट कर आज बिहार का वोटर लिस्ट बाहर निकला है। भाइयों, हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को 1 वोट 1 वैल्यू की अधिकार दिया है। ये पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, निर्माताओं और कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या ये लोग तो उस वक्त थे नहीं ना? 1-2 थे। अगर ये वोट तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी के संविधान को ये मिला है। और डॉक्टर अंबेडकर 15 जून 1949 को संविधान सभा में कहा, क्या कहा? फ्रेंचाइज is a most fundamental thing. It is a most fundamental thing in a democracy. कोई भी व्यक्ति जिसे हमारे संविधान के हिसाब से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, उसे किसी लोकल गवर्नमेंट के प्रिजुडिसेस या किसी ऑफिसर की विम पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ये उस वक्त आर्टिकल 289 जो ड्राफ्टिंग कमेटी का आर्टिकल, उसी वक्त उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आके, या लोकल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल लीडर्स हो, ऐसे लोगों के दबाव में आके अगर आप वोटर्स को वंचित करते हैं वोट से, तो ये अच्छा नहीं। उसी वक्त उन्होंने कहा है। तो जो संविधान सभा में चर्चा हुई, उसके खिलाफ काम आज ये गवर्नमेंट कर रही है और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन को तो बहुत बड़ा लेसन राहुल जी ने दिया है। उनको कहा कि आओ देखो, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाप बेचारा वो भी परेशान है, क्योंकि अब वो कहा, सच कहा तो वहां रह नहीं सकता। अगर झूठ बोला तो लोग छोड़ते नहीं उसको। अब राहुल जी जैसे नेता लोग उसके पीछे पड़े, वो घबराया और बात में उन्होंने कहा, राहुल जी ने, तुम पद पे रहो या न रहो, तुम रिटायरमेंट होने के बाद भी हम आपके पीछा लगेंगे। अब ये राहुल गांधी जी जब ये बात कहे
तो वो भी परेशान है। हम क्या करना, इधर तो झूठ बोलो, इसकी आदत बीजेपी ने डाली है और सरकार हमको धमकी दे रही है। उधर रूल्स के मुताबिक अगर आप नहीं चलेंगे या नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसके बीच वो भी लोग थोड़ा परेशान है और हमको तो काम करना है और इससे आगे बढ़ना भी है। आज बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की वजह से ही संवैधानिक अधिकार खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता समझी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार बार सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, आईडी, राशन कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था। इसको करने के लिए उन्होंने ओरल इंस्ट्रक्शंस भी दिया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, नहीं करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये सब लोग अगर हम वोटर लिस्ट में डालेंगे, ये लोग देश के हित में कांग्रेस को ही वोट देंगे, ये समझकर उन्होंने इन लोगों को वो निकाल रहे हैं। ये गलत है। एक बार वोटर लिस्ट में लाओ, वो डेमोक्रेसी में किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन चुन चुन के ये काम कर रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा, और हम ये कहेंगे, कांग्रेस पार्टी उनको नहीं छोड़ेगी। जहां भी है, उनके शब्द में बोलूंगा, पकड़ लेके लाएंगे। उन्होंने ये कहा कि कहीं भी अगर छुप गए तो भी हम पकड़ के लाके उनको पूछेंगे ये गलतियां क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, आज देश की परिस्थिति क्या है। आज देश की 1% आबादी के पास 40% संसाधन है, धन है, पैसा है, और आज हायर एजुकेशन तो गरीबों के लिए सपना बना है। 6 लाख 60 लाख फीस बच्चे, गरीबों के बच्चे कहां से लाएंगे। और हमारे संविधान में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपने कहा है कि शिक्षा सबको मिलेगा, सबको देंगे, फ्री एजुकेशन। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट लाया शिक्षा का, फ्री एजुकेशन का, लेकिन आज ये गवर्नमेंट एजुकेशन भी बेच रही है और गरीब के पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल खोले थे वो भी एक बंद कर रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट लोगों को इसका फायदा हो, गरीब लोग उससे पढ़ने से वंचित हो, ये उनका फैसला है। तो हमको ये सब चीजें बताना है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षण के लिए, न्याय के लिए, हम सबको कुछ करना है। तो इसीलिए मैं आप सभी लॉयर से भी इसके बारे में भी आपको ज्यादा, आज विपक्षी सरकारों को गिराकर अल्पमत की सरकारें बनाना, नेताओं पर झूठे मुकदमे चलाना, प्रश्न लोगों को जेल में डाल देना, आरटीआई कार्यकर्ताओं का हत्या करना और आरटीआई कानून को कमजोर करना, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल बन गया है। यही उनके शब्द ही है, न्यू इंडिया न्यू नॉर्मल। वही आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस भाजपा संस्थानों पर कब्जा कर रही है। इसका सबसे उदाहरण हमारे सामने है। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम हो, पूरे आरएसएस के इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, उनके संस्था से कर रहे हैं।
जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं अपने कार्यकर्ताओं को वो दे रहे हैं और देकर सच झूठ कुछ भी हो, सिर्फ बीजेपी को और आरएसएस को फायदा हो, ये काम वो कर रहे हैं। तो जब आवाज उठाते हैं उनको जेल भेजा जाता है, उनके ऊपर उनको हरास किया जाता है, तो मैं आप विनती करूंगा जो भी लोग आप सभी लोग एक होकर हमारे साथ खड़े होंगे, कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे, ये मैं आशा करता हूं। आपने गौर किया होगा कि सांसदों को बोलने नहीं ठहरते हैं और राहुल गांधी जी हो, मैं यहाँ पर राज्यसभा में हूँ, माइक नोटिस देने के बाद भी जब हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं या नहीं किसी रूल्स के तहत हम बोलना चाहते हैं, हमको बोलने ही नहीं देते। हम जनता की आवाज और जनता के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि देश में बहुत से समस्याएं हैं। हमारे सरकारों को पैसे नहीं देते, कोई भी स्कीम में एक पैसा जल्दी नहीं वो रिलीज करते और हमारे लोग गिड़गिड़ाते और हमारे ऊपर दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये कार्यक्रम क्यों रद्द हुआ। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ही खुद रद्द कर रही है, पैसे नहीं दे रही, अलग अलग नाम से वो स्कीम के नाम रख के वो अपने लोगों को कुचल रही है। इसीलिए बहुत से जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो परेशान है और ऊपर से वही लोग पूछते हैं कि काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हो या हमारे पार्टी, काम करने की क्षमता उनके पास है, लेकिन सरकार उनको मदद नहीं कर रही। भाइयों, और अपने गौर किया होगा, संसद में विपक्षी सांसदों को तो एक तरफ बोलने नहीं देते। सरकार राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के माध्यम से पहले के, अभी ये भी जरा इनको देखना पड़ता, लेकिन परखना पड़ेगा कब क्या होगा, अभी तो मुझे कुछ मालूम नहीं हमारे पास। तो लोकसभा में तो कंटिन्यू है। सांसदों को आवाज दबा रही है, रिकॉर्ड सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। बीजेपी और मोदी जी बहुत खुश थे जब पहले के चेयरमैन थे हमारे, वो जब हमको बाहर निकालते थे, दबा देते थे, कुछ कुछ हमारे खिलाफ बोलते थे और सस्पेंड करे। एक तो हमारे महिला एमपी को पाटिल को 7 महीने, एक नहीं दो, ये इनकी डेमोक्रेसी है। और ये सब कौन किया? ये चेयरमैन नहीं किया, लेकिन एक दिन उनको एहसास हुआ कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी अहमियत क्या है, ये एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, मेरा भी कुछ है, ये समझने वो लगे। उनका कार्यकाल इतिहास में दर्ज होगा और आगे याद किया जाएगा। तो वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे। जब वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे, वो रूल्स की तहत अपने आप को असर्ट करने लगे। उन्होंने इलाहाबाद जज
शेखर यादव और जज यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का मोशन स्वीकार करने के बाद में इनको ऐसा लगा ये वीपी, ये चेयरमैन हमारे हाथ में रहने वाला नहीं है, ये सब हमारे खिलाफ जाने वाला है, इसको पहले निकालो। तो उन्होंने उनको थ्रेट किया, या तो तुम विड्रॉ करो जो एडमिट किए हैं मोशन, या तो विड्रॉ करो या तो आप रेसिग्नेशन दो। तब ये धमकी देने के बाद उन्होंने कहा मैं विड्रॉ तो नहीं करता, मैं रेसिग्नेशन देता हूं। तो उन्होंने रेसिग्नेशन दिया। तो ऐसा दबाव हर एक पर वो डालते हैं और डाल रहे हैं, लेकिन वो दबाव कांग्रेस पे नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। अरे कांग्रेस के लोग तो इस देश को आजादी दिलाए हैं, मरे हैं, सूली पे चढ़े हैं, वो डरते हैं। देश के एकता के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी, और जो लोग, जो फैमिली देश के एकता के लिए जान देती है, क्या ऐसे लोगों को, छोटे मोटे लोगों को डरती है? अभी बोल रहे थे राहुल जी, किसी एक वकील ने उनको बुला के धमकाया, ऐसा कुछ। हाँ, अरुण जेटली, ठीक बोले। तो अरुण जेटली डरा। अरे वो किसी को डरने वाले ही नहीं, अब अरुण जेटली को क्या डरेंगे? क्योंकि सच जो बोलता है और सच्चाई पे जो चलता है उसको कोई डरा नहीं सकता। और डर भी नहीं सकता। और डरेंगे क्यों? अगर हम कोई गलती करेंगे, अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हम किसी को सताएंगे उनके, तो उस वक्त अरे भाई हमने गलती की थी, उन्होंने कहा। यहां गलती नहीं के लिए वो बोलते हैं, तो उनका काम होता है सुनना। लेकिन मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं करते और उनका इस्तीफा मांगा। आप बेचारे वो अब घर में बैठे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, अच्छा भी नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचा तो भी मैं माफ़ी मांगता हूं उनसे, क्योंकि उनकी सुनते, बीजेपी का सुन के, आरएसएस का सुन के उन्होंने गलती की, उन्होंने खुद गलती नहीं की। तो जब आदमी खुद गलती करता है इंटेंशनली, उसको हम ब्लेम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो उनके तरफ से गलती की, उनको बचाने के लिए झूठ बोला, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं आज ये भी आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, किस ढंग से वो चेयरमैन को भी डराते हैं। अब दूसरे लोगों को तो कितने डराए होंगे उन्होंने। और एक कल ही मैंने एक उपसभापति को पत्र लिखकर सदन के अंदर हमारे पास सीआईएसएफ के मौजूदगी के बारे में आपत्ति जताई। अरे कभी पार्लियामेंट में कोई लोग, बाहर के लोग नहीं आ सकते, उनकी सिक्योरिटी रहती है और वो हमारे को देखते हैं, काम करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि बाहर के लोग को हस्तक्षेप करने के लिए सदन में लाया। ये लेटर भी मैं कल लिखा हूं, आज आप देखे होंगे, पेपर में भी आया है। और इसीलिए उस वक्त संविधान निर्माताओं ने
पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की स्थापना की। इसके अधिकारों को संसद के अनुरूप काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका कंट्रोल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के हाथ में था, लेकिन वो निकाल कर आज वो लोग सीआईएसएफ को अंदर बुला रहे हैं। ऐसा भाग के आते हैं कि जैसा कि टेररिस्ट को मार रहे हैं। टेररिस्ट को तो जल्दी मार नहीं सके, हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं अंदर घुसपैठ। हम ताजुब हो गए क्योंकि हमने नहीं देखा। 15-20 साल से पार्लियामेंट में हम आते हैं, देखे हैं, तो वो आते थे सफेद कपड़े पहन के, वहां के वॉलंटियर्स या जो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे वो आते थे, वो मदद करते थे। लेकिन काले दर 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 आ जाते हैं। अरे हम बोले क्या हो गया, कुछ बॉम्ब गिरा, क्या हो गया, क्या टेररिस्ट अटैक जैसा उनके जमाने में पार्लियामेंट को हुआ ऐसा कुछ हुआ क्या? डर गए हम, क्योंकि ये पहली बार देख रहे ना हम, इससे पहले नहीं देखे। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमारे होम मिनिस्टर के हाथ में है। पार्लियामेंट का अधिकार उन्होंने लिया है, सब अधिकार ले रहे उन्होंने लेकर। सीआईएसएफ सीधा गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। उनकी तैनाती विपक्षी सांसदों को दबाने और डराने का प्रयास है। हम सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान का निर्माण किया और समतावादी समाज की रचना की। हमारी पार्टी ही इन मूल्यों को जीवित रख सकती है। हमें लोकतंत्र होगी। इस काम में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे संविधान बचाने की मुहिम ने लोकसभा चुनाव में जनता को जागरूक किया, जिसका जिक्र मैं पहले अभी किया था, जिसकी वजह से आज विपक्ष मजबूत स्थिति में है और हर चैलेंज को फेस करने की और अब आप और हम सब जब मिल के काम करते हैं तो हमको कोई डरा नहीं सकता। तो इसीलिए हमको ये देखना होगा कि एक तरफ न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना होगा। सरकार को समझाना चाहिए, कभी भी टकराव से, सरकार को ये समझना चाहिए कि कभी भी टकराव से समाधान नहीं निकलता। शायद वो समाधान चाहते ही नहीं है। राजनीतिक दलों और नागरिकों के साथ संवाद करना चाहिए, वो संवाद भी नहीं करते। पार्लियामेंट मेंबर्स को बुलाकर बात भी नहीं करते। और हमारे मोदी साहब तो वहीं बैठे रहते, टीवी देखते रहते अपने रूम में, लेकिन पार्लियामेंट में कदम नहीं रखते। क्या समझ में नहीं आया मेरे को। अरे आप टीवी वहां देखने के या अंदर आके ये फिजिकल देखो ना, वो देखने को तैयार नहीं। उनको क्या डर रहे मेरे को समझ में नहीं है। आप निडर हो ना, ठीक है, हमारा देश का नेता निडर होना चाहिए, वो सामने भी नहीं झुकना चाहिए। अरे
तो इसीलिए कभी कभी बार बार मुझे याद आता है कि राहुल गांधी मोदी डरपुक है बोलते, वैसा बोलने। तो मैं बोला नहीं साहब, डरपुक कैसा होता है, 333 सीट लाया एक बार कम से कम 273 सीट लाया, और इस बार गया वो फंस गया, और ये डरपुक कैसा होता नहीं। तो ठीक है, हमको डरा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में मेंबर हमारे, लोकसभा में हमारे ट्रंप के सामने झुककर क्यों आप देश की बेइज्जती कर रहे हो, हमारे स्वाभिमान को बेच रहे हो। इसीलिए राहुल जी ने कहा, आप अगर एक बार कहे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप झूठ बोल रहा है ये कहो, मैं मान जाऊंगा। ये पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, लेकिन आज तक मुंह ही नहीं खोले। मैं समझता हूं शायद ये श्रावण का महीना इधर करते ना, तो वो मौन व्रत रखे होंगे एक महीना, जब तक ये महीना खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा सेशन खत्म नहीं होगा, तब तक वो मौन व्रत रखे हैं। तो डर के नहीं, वो मौन व्रत रखे क्योंकि भगवान से आए ना, वो क्या है, नॉन बायोलॉजिकल ये है, इसीलिए वो किसी को ये नहीं करता। तो इसीलिए ऐसा आदमी इस देश के प्रधानमंत्री बने, अगर ऐसा ही चला तो देश का तो दिवाला उठ जाएगा। और हम नहीं बोल रहे, दूसरे लोग भी बोल रहे। और जो राहुल जी ने कहा कि ये लोग दिवाला उड़ाने वाले हैं, दिवाला उड़ गया अभी। तो इसको हमको बचाना है, खुशी नहीं है। देश का अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, हमारे बच्चों को शिक्षण नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को स्वास्थ्य का ये नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारी जनता मरेगी ना। हमारा तो 140 करोड़ जनता को अच्छा स्थिति में रखना हमारा भी फर्ज है, हम उसलिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा यही करते हैं, युवाओं को संविधान का विरासत का रक्षक बनाना होगा, उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर जवाबदेही के लिए प्रेरित करना होगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया और हर नागरिक को वॉचडॉग की भूमिका निभानी होगी, तभी जीत हमारी होगी। इतिहास साक्षी है, सच हमेशा जीतता है, और सच अगर जीतता है तो हम सब लोग सच के साथी हैं। मैं श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी का और उनके साथियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया और अपने को मौका दिए। और मैं आप सबको बधाई भी देता हूं कि आप देश के कोने कोने से आए हो, इसीलिए आप हमसे ज़्यादा तकलीफ उठा के इस सम्मेलन में शामिल हो गए हो। तो आप सभी को इसकी सफलता का शुभकामनाएं। और इसी के साथ सिर्फ 2 मिनट में आपका लेता हूं और अपने बात को ख़त्म करता हूं। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी और हमारे विरोधी लोगों का जिन राज्यों में शासन है,